آزادی کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آخری فتح تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ایک سال میں کشمیریوں پر کیا بیتی ہے، انہوں نے کس کرب میں یہ سال گزارا ہے، یہ ان سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی کشمیر میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ جاری ہے۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ کرونا کے بعد دنیا جانتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی تکالیف کیا ہوتی ہیں، لیکن کشمیری ایک سال سے ڈبل لاک ڈاؤن برداشت کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا سے سوال ہے کہ اگر آپ پر ڈبل لاک ڈاؤن مسلط کیا جائے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ ڈبل لاک ڈاؤن تو امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے لوگ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے نوٹس دیگر حکام کے دعووں کے باوجود ملک میں چینی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور چینی 100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات نے ملک بھر میں چینی کی فی کلو قیمت 100 روپے تک پہنچا دی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق اسلام آباد اور پشاور میں چینی 100 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ کراچی، راولپنڈی اور کوئٹہ میں چینی کی فی کلو قیمت 95 روپے ہے۔ اس کے علاوہ لاہور، فیصل آباد، ملتان اور لاڑکانہ میں بھی چینی کی قیمت 90 روپے فی کلو ہے۔ مہنگائی پر ادارہ شماریات کی جاری ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق سکھر، حیدرآباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں چینی 92 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد احمد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس کس کے لیے ہے؟ اے پی سی ابو بچاؤ کا تسلسل لگتا ہے۔ فواد احمد چودھری نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایک بیان میں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی سیاست کے لیے مدارس کے بچوں کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اے پی سی میں نئی اضافی ڈش حلوہ شامل کیا جا چکا ہے۔ اپوزیشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سیاست میں ان کی مداخلت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اب احتجاجی سیاست کے قابل نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی مدرسے کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ مالی سال کے پہلے ماہ کا ہدف 243 کھرب روپے رکھا گیا، جبکہ جمع کردہ ریونیو 300 ارب روپے ہے۔ یہ اضافہ صرف بہتر انتظامی کنٹرول اور نگرانی کے باعث ممکن ہوا ہے۔ ملکی معیشت پر معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بدل رہا ہے پاکستان۔ اضافی ریونیو 57 ارب کے باوجود کسٹمز ڈیوٹی میں 25 ارب کا ریلیف دیا گیا۔ کاروباری کمیونٹی کو 15 ارب ریفنڈڈ بھی جاری کیے جا چکے ہیں، جو کہ گزشتہ سال جولائی میں 7 ارب روپے تھے۔ فائنانس ایکٹ 2020 میں کسٹمز پر کوئی نیا ٹیکس یا ڈیوٹی عائد نہیں کی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ حالات بہتری کی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ اموات میں بتدریج کمی آنا شروع ہو چکی ہے۔ مہلک وائرس نے مزید 27 افراد کی جان لے لی، جس کے بعد اموات کی مجموعی طور پہ تعداد 5951 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 903 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 92,843، جبکہ سندھ میں 2,20,550، خیبر پختونخوا میں 33,958، بلوچستان میں 11,732، گلگت بلتستان میں 2,105، اسلام آباد میں 15,014، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,073 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خبر دیں آپ کو، کورونا کے خلاف جنگ کرنے والے پروفیسر اشرف ضیاء قومی ہیرو قرار پا چکے ہیں۔ پروفیسر اشرف ضیاء کو گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے اضافی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ اس موقع پہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پروفیسر اشرف ضیاء کی کاوشوں اور کام کو خوب سراہا۔ پروفیسر اشرف ضیاء کا تعلق جناح ہسپتال کے شعبہ آئی سی یو کے وارڈ سے تعلق بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی سی یو کے ڈاکٹرز اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر کورونا کے خلاف لڑتے ہیں۔ ہمارے کئی ڈاکٹرز کورونا سے بھی متاثر ہو چکے ہیں۔
आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। कोरोना पर पॉइंट स्कोरिंग करने वाले अपोजिशन रहनुमाओं को झूठ की सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में हुकूमत की इंसदादे कोरोना पॉलिसी कामयाब रही है। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस कोरोना वबा का फैलाव रोकने में मदद मिली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मज़ीद कहना था कि अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है और ना ही कोई एजेंडा है। आपको बताएं कि सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद भी किया गया। हाजियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब में नमाज ईद के इज्तिमात के मौके पे समाजी फासले का ख्याल रखा गया और एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद किया गया। इस मौके पे इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा की तैयारियों का सिलसिला उरूज पे पहुंच चुका है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी का जानवर भी ले लिया है और कुछ लोग अब भी खरीदारी में मसरूफ हैं, जबकि कुछ लोग महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवर देखकर ही दिल पशोरी करते नजर आ रहे हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात की मवेशी मंडियों में रश बढ़ चुका है और अपना ये रश आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आपको बताएं कि शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। संगीन गलती के अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस का ईद के तीनों रोज चालान न करने का ऐलान कर दिया गया। शहरी भी ट्रैफिक कानून की पासदारी करते हुए सिटी ट्रैफिक पुलिस का साथ देंगे। खबर दें आपको, शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। संगीन गलती के अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस का ईद के तीनों रोज चालान न करने का ऐलान। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर स्टार न्यूज आजम बाजवा। आजम बाजवा, बताइएगा क्या इस प्रोसेस के बाद क्या वायलेशंस में इजाफा नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात की जाए तो जिंदा दिलाने लाहौर के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीसीपी लाहौर और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबद की जानिब से शहरियों को छोटी वायलेशन करने पर जो है इनके चालान नहीं किए जाएंगे और ट्रैफिक के पहिए को रवां दमा रखने के हवाले से जो है ये चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि शहरी जो है वो छोटी वायलेशन पर शहरियों का चालान नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनको ये बता दिया गया है, मुरासला जारी कर दिया गया है कि शहरियों को छोटी मोटी वायलेशन पर जो है वो छोड़ दिया जाए, लेकिन जो संगीन किस्म की वायलेशन होगी उस पर किसी किस्म का भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उस पर बाकायदा तौर पर उस गलती की बिना पर जो है उस हिसाब से जो है उनका चालान किया जाएगा। तो दूसरी जानब जो है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद आबद ने शहरियों से अपील भी की है कि वो ईद के पूर्व मुशर्रफ मौका पर अपनी खुशियों को दोबारा जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ सड़क पर ट्रैफिक का पहिया जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहना चाहिए और शहरी भी जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के साथ भरपूर तावन करें ताकि ईद की खुशियां जो है वो दोबारा हो सके। तो दूसरी जानब जो आपका ये कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये जो छूट दी गई है तो इससे वायलेशन में इजाफा हो सकता है, तो मंचले जो है इससे फायदा उठा सकते हैं क्योंकि वो देखेंगे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने तो इनको रोकना नहीं है और छोटी मोटी जो वायलेशन है उन पर इनको नहीं पकड़ा जाएगा। तो इस तरह जो है वो जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो भी पेचीदा हो सकती है। जी आजम बाजवा, बताइएगा कि सिग्नल्स की वायलेशन के अलावा क्या वन व्हीलिंग या जो मेन नौजवान होते हैं वो इस हवाले से डबलिंग या ट्रिपलिंग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? जी बिल्कुल, ट्रिपल सवारी पे तो शायद सिटी ट्रैफिक पुलिस माफी दे दे कि अगर ट्रिपल पे कोई सफर कर रहा है तो उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वन व्हीलिंग जो जानलेवा और खूनी खेल है इस पर किसी किस्म का भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कंप्रोमाइज जो है वो नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा जो सिग्नल है इसकी खिलाफ वर्जी पर भी किसी किस्म की कोई माफी जो है वो नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि संगीन किस्म की जो गलती होगी, वायलेशन होगी,
اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا. جی आजम बाजवा, ये ई चलानिंग भी बंद रहेगी फिर 3 दिन अगर कोई भी वायलेशन होती है तो जो सेफ सिटी ई चलान भेजता था घरों में, ई चलानिंग का सिस्टम भी 3 दिन बंद रहेगा? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है. लेकिन यहाँ पर अगर ई चलाने के हवाले से बात की जाए तो सेफ सिटी की जानिब से आज जो मुरासला जारी हुआ है कि सेफ सिटी के जो एहलकार हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो ईद के तीनों रोज यहाँ पर अपने फर्ज अदा करेंगे. लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी अंदिया दे दिया है कि शहरियों की जानिब से अगर ट्रैफिक सिग्नल्स की और ट्रैफिक वायलेशन की जाएगी तो सेफ सिटी जो है इस हवाले से ई चलान जो है वो बिल्कुल लोगों के घरों में भेजेगी और चलान भी करेगी. जी आजम बाजवा, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा. आपको बताएं कि शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, संगीन गलती के अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस का ईद के तीनों रोज घरों में या दीगर नॉर्मल चलान न करने का ऐलान सामने आ चुका है. आपको बताएं कि ईद तातीलात में IC3 सेंटर बदस्तूर अपना काम जारी रखेगा. पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स छुट्टियों में भी अपना ये काम जारी रखेंगे. वीडियो हसूल के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सेंटर खुला रहेगा. इसी हवाले से ही रुख करेंगे आजम बाजवा की जानिब. आजम बाजवा, सेफ सिटी अथॉरिटी अपना काम जारी रखेगी और आपको बताएं कि ये जो वीडियो के हसूल के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सेंटर खुला रहेगा. 5 बजे के बाद की तमाम वायलेशंस नजरअंदाज की जाएंगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, सेफ सिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सेफ सिटी ने ये ऐलान किया है कि वो ईद के तीनों रोज जो है अपने फराइज अदा करेंगे. तो इस हवाले से लाहौर पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं वो अगर चाहें तो किसी भी मुकदमे की सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक के एविडेंस जो है, वीडियो रिकॉर्ड जो है, CCTV जो है वो सेफ सिटी में जाकर जो है वो हासिल कर सकते हैं. तो सेफ सिटी का ये बहुत है कि अगर इन्वेस्टिगेशन और ऑफिसर जो है वो अपने मुकदमा को बेहतर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या अपनी इन्वेस्टिगेशन को मजीद जो है वो बेहतर करने के लिए अगर उनको सेफ सिटी से CCTV फुटेज या वीडियो एविडेंस चाहिए तो इसके लिए वो बिल्कुल हाजिर होंगे. और सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है जाकर वहां से रूल्स के मुताबिक जो है CCTV फुटेज और इसके अलावा एविडेंस वीडियो जो है वो भी हासिल कर सकते हैं. जी आजम बाजवा, बताइएगा कि ईद के तीनों दिन ये सेफ सिटी का जो अमला है ये मुकम्मल मुलाजिमीन अपनी ड्यूटियों पे हाजिर होंगे या शिफ्ट आदि की जाएगी? क्या इनको इजाफी अलाउंस दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस तरह का कोई मामला नहीं है. और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जानिब से जो है वो शहर में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार जिस तरह दीगर हमारे इदारे या पुलिस एहलकार शहरियों को हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम जो है उनकी जानिब से किए गए हैं. तो इसी तरह सेफ सिटी की जानिब से जो है वो शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के हवाले से इसका जो स्टाफ है इनको ईद के तीनों दिन जो है वो बुलवा लिया गया है ताकि यहाँ पर आप आकर अपने फराइज अदा करें और शहर में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और क्राइम के हवाले से जो है इस पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया जा सके. जी आपको बताएं कि CCTV जो मेन सेफ सिटी के जो दफ्तर हैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे और वीडियो के हसूल के लिए भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक राबिता किया जा सकता है. आजम बाजवा, आपका बहुत शुक्रिया. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं. आपको बताएं कि नाबीना अफराद के लिए खुशखबरी. अब नाबीना अफराद का इलाज म्यू अस्पताल में मुमकिन हो सकेगा. म्यू अस्पताल में बेनाई से महरूम 5 नाबीना अफराद को बेनाई दी जा चुकी है. आपको एक अच्छी खबर से आगाह करें कि अब नाबीना अफराद का इलाज लाहौर के म्यू अस्पताल में मुमकिन होगा. म्यू अस्पताल में बेनाई से महरूम 5 नाबीना अफराद को बेनाई दी जा चुकी है. लाहौर से अच्छी खबर शामिल करें. आपको बताएं कि नाबीना अफराद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है. अब नाबीना अफराद का इलाज लाहौर के म्यू अस्पताल में मुमकिन होगा. म्यू अस्पताल से बेनाई से महरूम 5 नाबीना अफराद को बेनाई दी जा चुकी है. जबकि कामयाब ऑपरेशन के बाद देखा गया है कि 5 नाबीना अफराद का ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन कामयाब होने के बाद इन 5 नाबीना अफराद को बेनाई दी जा चुकी है. लाहौर से अच्छी खबर दें आपको, लाहौर के म्यू अस्पताल में अब नाबीना अफराद का इलाज मुमकिन हो सकेगा. आपको बताएं कि लाहौर में 5 नाबीना अफराद का इलाज किया गया. ऑपरेशन के बाद उन तमाम 5 नाबीना अफराद को बेनाई दी जा चुकी है.
आपको बताएं कि नाबीना अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आई है। लाहौर के म्यू हस्पताल में नाबीना अफराद का इलाज हो सकेगा। म्यू हस्पताल में बीनाई से महरूम 5 नाबीना अफराद को बीनाई दी जा चुकी है, जबकि देख सकते हैं कि आप डॉक्टर्स का पैनल इन नाबीना अफराद का इलाज कर रहा था और कामयाब ऑपरेशन के बाद इन 5 नाबीना अफराद को बीनाई दी जा चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे रिपोर्टर स्टारिशा न्यूज़ अब्दुल वहीद रबानी से। वहीद, बहुत अरसे बाद एक लाहौर के अस्पतालों से, एक सरकारी अस्पतालों से एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल अगर आपने दुरुस्त कहा कि एक अच्छी खबर आई है, खास तौर पर जो नबीना अफराद हैं उनके लिए ये अच्छी खबर ये आई है कि दुरून ममालिक से एक जो करनी नाम की एक जो खूनकारी आंखों के लिए खास तौर वो खिलाई गई है और उसे जो नबीना अफराद हैं उनकी जो बनाई है उसको मुमकिन बनाया गया है। न्यू अस्पताल का जो शुरू आई है उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं प्रोफेसर असद असलम की सरबराही में ये इलाज हुआ है और आज 5 ऐसे अफराद हैं जो नबीना थे और उनने जो बनाई की जो ये उनके ट्रीटमेंट हुआ इसके बाद काबिल हो गए अब देख सकेंगे। इस तरह उनका कहना था कि प्रोफेसर असद असलम का एक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हम मुमकिन बना रहे हैं कि जो लोग नबीने हैं उनकी जो बनाई है वो वापस लौटाई जाए और इस तरह आज 5 ऐसे अफराद की बनाई उनको लौटाई गई है और इस तरह जो ये सिलसिला वो आगे जारी रहेगा। जी, आपको बताएं कि लाहौर के म्यू हस्पताल में नाबीना अफराद की बीनाई के हवाले से ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स की जानिब से ये कामयाब ऑपरेशन देखने में नजर आया है। लाहौर के म्यू हस्पताल में 5 नाबीना अफराद का ऑपरेशन करने के बाद उनको बीनाई दी जा चुकी है। लाहौर से अच्छी खबर से हमें आगाह कर रहे थे अब्दुल वहीद रबानी, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आके मिल जा लब दे नैना, आके मिल जा सारी सारी रात सोच सोच रोते रहने। शोबिस का साल कैसा रहा? काफी मूवीज रिलीज हुई हैं और काफी अच्छी रिलीज हुई हैं। हाँ, पंजाब नहीं जाऊंगी। हाँ। मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना। अहमद, आप बताइए ये साल कैसा रहा? दोनों चीजें चलती हैं लाइफ में। जब तक कोई मुश्किल ना आए तो तब तक समझ नहीं नहीं आती कि आती। अच्छे की तरफ जाना कैसे है। देखिए प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल जैसी एट 10:10 पर सिर्फ स्टार एशिया न्यूज पर।